Hello everyone. So let us discuss another video on the basics of investment. Till now we have discussed about the meaning, objectives, types of investment, what is bull market, speculation, bear market. We have discussed all these things. Now we are coming on to very important part in which we will be discussing about the investment decision process, principles of sound investing, and what are the don'ts of good investing. So basically this video is very important from the point of view because we can expect a question from the investment decision process. So let us discuss it one by one. So see, the investment decision process involves the following six steps. These are the ideal six steps, but in some books you can find seven steps or eight steps. That would be a combination of these six steps only. So see, investment decision process, you can see the process of investment comprises the following steps. Number one, setting up the investment goal. What is the goal? Why you're making an investment? So that is the first point. Second, building up an inventory of securities. So basically, what are the securities you're looking for? We'll discuss one by one. I'm just reading out right now. Third, performing security analysis. आप एनालिसिस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इज गुड और बैड. Fourth, you will be constructing a portfolio. Portfolio is nothing but collection of stocks or collection of shares. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ जो भी आपका कलेक्शन होगा जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं. यू विल फॉर्म वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो, यू विल एनालाइज और जो बेस्ट पोर्टफोलियो आपको लगेगा, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो लगेगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे. फिफ्थ, you will measure the performance of portfolio and you'll manage the items, or you will manage the stocks, and if there is a need that a particular stock should be added or should be, you can say, deleted from the portfolio, so that would come under portfolio revision. So let us discuss all these steps one by one. So the first step says investment decision process. The first step is based on the investment goal. For example, an investor has to seek out what is the goal, why he's making an investment. His goal may be regular income, capital appreciation, or seeking out tax benefits. So that must be known to investor कि वो investment क्यों कर रहा है. Objectives जो भी हम उसके frame करते हैं investment policy से, they are based on risk and return preference. So objectives are framed based on risk and return preference. And period of investment, और जिसको हम investment horizon भी बोलते हैं, also plays a very important role while setting out the investment objective and while chasing the investment policy. So here, first of all, he has to determine the objective, which is based on risk and return and the time duration of the investment. Second step comes, like you have decided your objective, so you will build up an inventory of securities. ये आप लिस्ट बनाएंगे कौन कौन सी सिक्योरिटीज में आपको इन्वेस्ट करना है, तो उस लिस्ट को फिर आप फिल्टर करेंगे एज पर योर प्रेफरेंस. प्रेफरेंस आपके ऑब्जेक्टिव्स और टाइम होराइजन को लेके भी हो सकता है. तो सी द सेकंड स्टेप इज बिल्डिंग अप एन इन्वेंटरी ऑफ सिक्योरिटीज. द सेकंड स्टेप इन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, filtering out those securities as per the investment objectives and investment horizon. फिर आपने जब सिक्योरिटीज की लिस्ट बनाई उसमें आप चेक करेंगे कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और ऑब्जेक्टिव से मैच कर रही है. देन वी मूव ऑन टू द थर्ड. फॉर एग्जाम्पल यू हैव सेलेक्टेड सम सिक्योरिटीज. अब आप उसका एनालिसिस करेंगे. अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसके नेम्स बता रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे वीडियो चेक करेंगे और आगे नई यूनिट्स और चैप्टर्स पे चेक करेंगे तो ये आपको दोबारा आएगा एनालिसिस वाला पार्ट, तो वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द सिक्योरिटीज विद रिस्पेक्ट टू रिस्क एंड रिटर्न. इसके लिए हम डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हैं. जैसे फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, जिसके अंदर आप आगे पढ़ेंगे एक EIC अप्रोच होता है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड यू कैन से कंपनी एनालिसिस. वो मैं आपको नेक्स्ट यूनिट्स में आगे यूनिट्स में बताऊंगा. बट फंडामेंटल एनालिसिस इज फॉर लॉन्ग टर्म व्यू. टेक्निकल एनालिसिस इज फॉर शॉर्ट टर्म व्यू, जहां पर हम अपना शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं. और टेक्निकल एनालिसिस में जनरली हम जो हमारा पास्ट प्राइस डेटा है उसको कंसीडर करते हैं. और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, बट आप एक्सप्लेनेशन में इनका नाम लिख सकते हैं while you are performing the security analysis. The fourth step is very important. So portfolio is nothing but where you are
कीपिंग मल्टीपल स्टॉक्स इन योर अकाउंट, सो दैट इज पोर्टफोलियो। दो या दो से ज्यादा सिक्योरिटीज अगर आप अपने अकाउंट में इन्वेस्टर प्रेफर करता है तो इट विल कंसिडर एज अ पोर्टफोलियो। कहते हैं ना आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स हैं। तो फोर्थ स्टेप इज कंस्ट्रक्टिंग पोर्टफोलियो, एनालाइजिंग पोर्टफोलियो एंड सेलेक्टिंग द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। A portfolio is the combination of two or more securities that an investor may prefer to hold as investments. After the security analysis, the investor constructs all possible portfolios and select the optimal portfolio. Select कैसे करेगा? जो उसके ऑब्जेक्टिव से, टाइम होराइजन से, भाई उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है रेगुलर इनकम उससे मैच कर रहा हो तो उसमें से वो बेस्ट पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करेगा। और उसमें हो सकता है बेस्ट पोर्टफोलियो एक दो पोर्टफोलियो हो सकते हैं जिसको टेस्टिंग करे, चेक करे। To select the optimal portfolio, one needs to consider the risk and return preferences of investor. अभी अभी जो रिस्क एंड रिटर्न बार बार देख रहे हैं ना, ये आगे चैप्टर में आएगा, जहां पर हमारा पूरा चैप्टर ही रिस्क एंड रिटर्न पे है, तो वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट कम्स इज पोर्टफोलियो रिवीजन। तो पोर्टफोलियो रिवीजन इज बेसिकली, यू कैन सी, अब द इन्वेस्टर नीड्स टू रिवाइज हिज पोर्टफोलियो पीरियोडिकली। तो बेसिकली हम जो इन्वेस्टर होता है उसको पीरियोडिकली रिवाइज करता है। जैसे अब उसने एक अपना ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया एक दो, उसमें वो चेक करेगा कि क्या ये जो पोर्टफोलियो मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं ये ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है, क्या मुझे इसके अंदर कुछ सिक्योरिटीज को चेंज करना है, क्या कोई मार्केट कंडीशन चेंज होंगी। तो हम अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करते हैं बेस्ड ऑन आवर ऑब्जेक्टिव। तो सी, द इन्वेस्टर नीड्स टू रिवाइज हिज पोर्टफोलियो पीरियोडिकली फॉर द फॉलोइंग रीजंस: चेंज इन सिक्योरिटी प्राइसेस, चेंज इन मार्केट कंडीशंस, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण वो अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करना चाहे। तो पीरियोडिक रिवीजन इज नेसेसरी टू कीप द पोर्टफोलियो अट्रैक्टिव एंड प्रॉफिटेबल। तो बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आप रिवाइज क्यों करते हैं, बिकॉज ताकि आपको लगे कि जो मार्केट की चेंजिंग कंडीशंस हैं वो और आपको पोर्टफोलियो एक अट्रैक्टिव रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करे। तो और लास्ट स्टेप हमारा इसके अंदर क्या आ जाता है बेसिकली, so you can see portfolio performance evaluation. The last step is to analyze the performance of portfolio through various techniques, जो हम ये रेशियो ये आगे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। शार्प रेशियो, ट्रेनर्स रेशियो एंड जेंसन अल्फा, ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हमारे को बताती हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बाकी बेंचमार्क पोर्टफोलियो से बेटर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द पोर्टफोलियो हैज परफॉर्म बेटर देन द बेंचमार्क पोर्टफोलियो और नॉट। So these are the 6 steps of investment decision process और investment process and it is considered to be most important। तो जब भी प्रोसेस आता है तो ये एक्सप्लेनेशन उसके लिए कंफर्टेबल है, लेकिन आप जब आगे वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें और एक्सप्लेनेशन मिलेगी जिसको आप टाइम टू टाइम अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड इन्वेस्टिंग। तो देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो विच इन्वेस्टमेंट वुड यू कंसिडर दैट इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट और साउंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए सबसे पहला तो यही है, इन्वेस्टमेंट शुड मैच द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। जिस इन्वेस्टमेंट में हम कर रहे हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मैच करना चाहिए। हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक फ्रेज सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इसी तरह आप सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो, एक ही शेयर में इन्वेस्ट मत करो, आप डाइवर्सिफाई करो अपने पैसा को, वेरियस एसेट क्लास में बांटो, ताकि कोई अगर एसेट अगर कोई रिटर्न कम दे रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ आपके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर होंगे जो आपको ज्यादा रिटर्न देंगे, जो ओवरऑल आपको एडिक्वेट रिटर्न करने में हेल्प करेंगे। देन कम्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जनरली आप देखते हो कि जैसे हम एसआईपी करते हैं या कुछ करते हैं तो उससे उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि धीरे धीरे करके पैसा जुड़ के लास्ट में एक ह्यूज सम बन जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। साउंड इन्वेस्टमेंट का दूसरा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि हमें टैक्स बेनिफिट्स मिले, कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करेंगे तो क्या तब हमें कोई बेस्ट टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो वो भी जैसे ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर 80C के अंदर हम डिडक्शन मिलता था जब हम LIC की पॉलिसीज वगैरह में इन्वेस्ट करते थे। फिर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन से अगेंस्ट, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है कि कई बार क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा होना चाहिए, ताकि जो इन्फ्लेशन के कारण जो हमारा इन्वेस्टमेंट है
उसकी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, जब हमारी आप कह सकते हो कि जब रेट्स बढ़ जाते हैं लेकिन उस हिसाब से हमें रिटर्न्स नहीं मिलते, तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट करें जिसमें हमें इन्फ्लेशन इफेक्ट भी कैलकुलेट या उसके अगेंस्ट हमें हेज मिल जाए। फिर वो ये सेव रेगुलरली फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट शुड मैच द रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर। भाई उसकी रिस्क प्रेफरेंस क्या है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, डोंट्स ऑफ गुड इन्वेस्टिंग। तो गुड इन्वेस्टिंग आप कौन से केसेस में कहेंगे कि नहीं सही है? देखिए, सबसे पहला है अवॉइड हर्ड बिहेवियर। हर्ड बिहेवियर का मतलब होता है कि बेसिकली झुंड बनाकर चलने की जरूरत नहीं है, जिसको ये कॉमनली ऑस्ट्रिच बिहेवियर भी बोल देते हैं। कि जैसे होता है ना कि भेड़ बकरी की तरह चले जा रहे हैं, इन्होंने मोस्टली लोग कहते हैं कि हमने सेल किया तो आपने भी सेल कर दिया। मार्केट में लोग कहते हैं कि शेयर खरीद लो बिना सोचे समझे। तो हर्ड बिहेवियर हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है। अवॉइड चेजिंग टिप्स। भाई कई बार होता है आपको ऑनलाइन आपको इतनी टिप्स मिलती है, तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय दोज टिप्स अनटिल वो कोई रिलायबल सोर्स से ना आ रही हो। डोंट एक्सपेक्ट क्विक रिटर्न्स, क्योंकि जनरली जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनका सबका एक माइंड फ्रेम होता है कि हम जल्दी से जल्दी हमें अमीर बनना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यू नीड टू गिव टाइम एफर्ट्स। देन अवॉइड इन्वेस्टिंग ऑल मनी इन वन शेयर और सेक्टर। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि डाइवर्सिफाई होना चाहिए पोर्टफोलियो। एंड डोंट बाय स्टॉक्स ऑफ बैड कंपनीज। कई बार होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शेयर 1 रुपए से कम कम होते हैं ये बहुत लुक्रेटिव होते हैं, आगे चल के बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें से कुछ शेयर्स बेकार भी होते हैं और कुछ ही शेयर होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, what are the principles of sound investing, and what are the don'ts of good investing. So I hope this topic is clear to you. So please like, subscribe our channel, and please share with your friends so that they can also learn this lucrative topic. And we have playlist of various subjects: financial management, cost accounting, business statistics. अब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी हो गया जिसको हम फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। So thank you so much, and please comment if you have understood the video. Thank you.